have not attended last class, in that case, I'll give a brief recap. So let me post a message in the group in case if there are some students who have not joined in the class, I can make them join the class now. Right? Okay. So I'll just give you a brief recap of what I taught yesterday. In case some of you were not able to attend yesterday's class, I just discussed about vectors, right? What vectors are, what it represents, how the length is represented, how the direction is represented, right? Uh, so next we can go to again vector addition or resultant of vectors. In case you want to take down the notes, what you can do is you can take the screenshots right now. If you were not present in yesterday's class, right? Then you can take the screenshots also. So I also taught about vector addition, resultant of vectors, how to take resultant of vectors. So resultant of vectors को कैसे है ना, how it is taken resultant of vectors, that also we did calculate. Then we discussed some problems. Actually, in fact, we also discussed about how to calculate the magnitude of resultant of vectors. So did you see that? Right. So you can take the screenshot. So these are the problems we discussed. Okay, now I can show you one more problem. This is one more problem that we discussed. Some 2 to 3 problems we discussed in yesterday's class. So if you're interested, you can take the screenshots also at the same time. So look at this also. Okay, so now we'll move to dot product and cross product of vectors. ठीक है ना? Okay, first before that we can discuss about unit vectors. So basically we can also discuss about unit vectors.
What are unit vectors? Unit vectors basically are vectors which have direction and magnitude 1. है ना? Vectors whose magnitude is equal to 1 and which possess are called unit vectors, right? ना? तो जो वेक्टर के पास जिसका मान लो मैग्नीट्यूड 1 है और ना जिसके पास डायरेक्शन भी है ना, बट मैग्नीट्यूड उसका 1 होना चाहिए, दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, है ना? सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स एक्चुअली, है ना? सो आई कैन से दैट इफ ए वेक्टर है ना इज अ वेक्टर, देन यूनिट वेक्टर अलोंग ए, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग ए is a cap. So unit vector along A is a cap, है ना? Unit vector is represented by cap symbol. वेक्टर के ऊपर जब कैप सिंबल लगाते हैं ना तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, say that a cap is equal to a vector divided by its magnitude, है ना? और हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लेट्स से a cap is unit vector, that is a vector divided by its again magnitude, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना? We can take mod of the vector which that actually represents magnitude. Mod of the vector is the magnitude, ठीक है ना? Okay students, next is after unit vectors we can actually move to, after unit vectors, right? Representation of vectors, unit vectors along the rectangular Cartesian coordinate system. Next we can discuss representation of unit vectors along rectangular Cartesian coordinate system. ठीक है ना? So what is this representation of vectors? ठीक है ना? So along x-axis, unit vector along x-axis is I cap, unit vector along y-axis is j cap, unit vector along z-axis is k cap. So what are unit vector? I cap is unit vector along x-axis. J cap unit vector along y-axis. And what is k?
k cap is again unit vector along z axis. ठीक है ना? So these are unit vectors along different axes: I cap, j cap, k cap. Unit vector along x axis, y axis, z axis. ठीक है? So I'm moving to the next slide. इतना तो सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, students. Everyone understood this much? यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Okay. So now I'll take up basically I can say that okay, if a vector, तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, मान लो अगर a is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. If a vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then है ना, I can say that magnitude of a vector is equal to x square plus y square plus z square whole under root. So this is magnitude of a vector. At the same time, this is magnitude of a vector. है ना? At the same time, what is a cap? This is unit vector along a. So this is unit vector along. So magnitude of a vector under root x square plus y square plus z square. तो यूनिट वेक्टर along a क्या होगा? यूनिट वेक्टर along a is equal to unit vector along a is equal to है ना, a vector divided by its magnitude, है ना? So implies a cap क्या होगा? That is equal to a vector which is xi cap plus yj cap plus zk cap divided by unit vector along its direction under root of x square plus y square plus z square. ठीक है ना? So this is a cap. ठीक है? This is basically the representation of a cap in terms of uh, unit vector along z axis. ठीक है? Okay. Next we can move to dot product. So now I can move to dot product of vectors. Is this understood? बच्चों ये समझ में आ गया तुम लोगों को? Yes. Am I audible? Yes, sir. Okay. So let me go to the next page. So now we can move to dot product of vectors. So what is dot product of vectors? Dot product of vectors है ना? If A and B are two vectors, if A and B are two vectors, and angle between them equal to theta, and angle between them equal to theta, is theta, है ना? Then A dot B क्या होगा? That is equal to AB cos theta.
है ना. This is dot product of A and B. So this represents dot product of A and B. मतलब दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, that is actually product of magnitude of vectors with cos theta, where theta is the angle between them, है ना. That is A dot B, है ना. Basically that is equal to AB cos theta. Now as you can see from here, ये जो A dot B equal to A B cos theta है, A B cos theta ना, तो ये जो राइट हैंड साइड है, it only represents magnitude, है ना. A, this is magnitude of A, this is again magnitude of B, है ना. ये जो A है, that is magnitude of A. ये जो B है, this represents magnitude of B, है ना. This is cos theta. Cos theta is a, this also is a kind of magnitude, है ना. This is a numerical value basically. ठीक है. So the product on the right hand side is completely a numerical value, or it's a scalar. So the product, है ना, is a scalar quantity. The right hand side term is a scalar quantity. ये एक scalar quantity है. That is why dot product are also called scalar products. Dot products are also called scalar products. तो डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बेसिकली इज स्केलर, hence dot products are also called scalar products. बच्चों समझ में आया ना? ठीक है. तो दो क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो होता है स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है. अब if I take dot product of unit vectors along x, y and z respectively, if we discuss about dot product of unit vectors along x, y and z respectively, अगर हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करें ना, तो आई डॉट आई हो जाएगा 1, आई डॉट जे बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 0, है ना. ठीक है ना. इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 देन द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. इफ थीटा 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. सो आई डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट जे इक्वल टू 1, जे डॉट के इक्वल टू 0, जे डॉट आई इक्वल टू 0. Similarly, k dot k is equal to 1, k dot I equal to 0, k dot j equal to 0. ठीक है ना. So these are the basic dot product of unit vectors. ठीक है. चलो अभी इसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है ना क्वेश्चन लगाते हैं अभी. बच्चों ये समझ में आ गया ना सबको? Everyone is clear? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. चलो तो फिर है ना सब लोगों को समझ में आ गया है ना डॉट प्रोडक्ट और है ना. तो अभी डॉट प्रोडक्ट के है ना हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं यार. I'll go to another slide now. So if I say that, let's say मान लो मैं डायरेक्ट तो डॉट प्रोडक्ट तो नहीं पूछूंगा क्योंकि तुम लोग तो निकाल लोगे, है ना. तुम लोग 2 साल खत्म कर लिए हो. ठीक है. क्वेश्चन को थोड़ा ना अच्छा बनाते हैं. ठीक है. पॉइंट इज इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर is equal to 2i cap minus j cap minus k cap.
ठीक है ना। देन calculate then calculate unit vector along, or then find out unit vector of component of A along B. Component of A along B. Now, A vector is like I cap plus 2j cap minus 3k cap, and B cap is equal to 2 I cap minus j cap minus k cap. So you have to calculate unit vector of component of A along B. ठीक है बच्चों, चलो मैं बता देता हूँ. You can take some time, नहीं तो मैं बता दूंगा. So if basically if A vector equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap and B vector is equal to I cap minus j cap minus k cap. ठीक है ना. अगर A वेक्टर I cap प्लस 2j cap minus 3k cap है and B वेक्टर इक्वल टू I cap minus j cap minus k cap है ना, देन है ना A डॉट B क्या होगा, A डॉट B इज इक्वल टू A B cos थीटा. ठीक है ना. जब हम A B cos थीटा बोल रहे हैं देन व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ A along B. तो मान लो अगर A और B के बीच में एंगल जो है अगर थीटा है तो लेट्स से, तो मान लो ये A वेक्टर है फॉर एग्जांपल है ना. मैंने दो वेक्टर रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और मान लो कि ये बी वेक्टर है. आई हैव रिप्रेजेंटेड टू वेक्टर्स. आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर. मैं क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा अभी ए से बी वेक्टर के ऊपर. अगर उनके बीच में एंगल थीटा है तो ये जो है भी ए cos थीटा. तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दैट इज ए cos थीटा. है कि नहीं. सो इंप्लाइज कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है ना. तो A का कंपोनेंट अलोंग B क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B इज component of A along B is
a cos theta, ठीक है ना। तो a का कॉम्पोनेंट b के अलोंग कितना है, दैट इज a cos theta, ठीक है। So when I'm saying component of a along b is a cos theta and a dot b is equal to ab cos theta, तो a cos theta कितना होगा, a cos theta equal to a dot b upon b upon magnitude of b, है ना। तो I can also say that this is also component of a along b, जो मैं a cos theta बोल रहा हूँ ना, that is also a dot b upon magnitude of b, जो मैं a cos theta बोल रहा हूँ that is a dot b upon magnitude of b, ठीक है ना। इसको भी हम बोल सकते हैं ना component of a along b, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं ना। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, a वेक्टर का वैल्यू कितना है, ए सॉरी ए वेक्टर का नोटेशन क्या है, ए वेक्टर इज गिवन एज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है ना। implies a vector dot product with b vector equal to i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 2, j कैप का j कैप के साथ होगा -2 -3 k कैप with k कैप, है ना। so that will be equal to +3, implies a dot b vector कितना हो गया, a dot b vector equal to 3, समझ में आ गई नहीं, a dot b vector equal to, so what is the magnitude of a dot b vector, है ना। a dot b vector आ गया 3, अब मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्या होगा, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, b वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा, अच्छा यहाँ पे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। सो बेसिकली a cos theta is equal to a dot b by b, so that is equal to 3 by root 6, ठीक है ना, 3 by root 6, so basically this is equal to under root of 3 by 2, so ये actually magnitude of है, this is actually magnitude of component of a along b, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, Yes, यहाँ sir. तक सबको समझ में आ गया ना, कहीं पर अगर डाउट है ना so you can ask, है ना, feel free to ask if you have not understood, है ना, I can take some more time and I can explain it again, ठीक है, लेकिन है ना क्लास में समझना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया ना। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमको, देन कैलकुलेट यूनिट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो अभी हमें जो है यूनिट वेक्टर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो कैलकुलेट कर लिया, वो तो √3/2 है, मैग्नीट्यूड है ना। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं ऑफ ए वेक्टर अलोंग इज ए cos थीटा, है ना, विच इज इक्वल टू हमने अभी कैलकुलेट किया √3/2, है कि नहीं बच्चों, ठीक है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज √3/2, बट व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर along this direction,
मतलब a cos थीटा के अलोंग हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब ये कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, है ना। सॉरी सॉरी आई मतलब इसका पहले तो वेक्टर प्रेजेंटेशन हमें चाहिए ना। मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने ऐसे, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, उसका यूनिट वेक्टर बाद में निकालेंगे ना, वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो पहले तो हम वेक्टर निकालें तब जाके हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा ना। कैलकुलेट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। मैंने जो यूनिट वेक्टर निकाला था उसको अभी मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर, है ना। बच्चों इतना नोट कर लिया ना तुम लोगों ने, हैव यू Yes, नोटेड? sir. अच्छा, Yes, तो मैं sir. क्या कर रहा हूँ ना, अभी कुछ हटा, स्पेस, सम मोर स्पेस फॉर राइटिंग, ठीक है। तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए लिखने के लिए, तो मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली व्हाट इज वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ ए cos थीटा। अच्छा, ए cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, इट इज अलोंग बी। a cos theta, actually here I can say that a cos theta is directed along b because it is component of a vector along b vector. So this is no, directed along b vector. तो ये जो a cos theta है basically it is directed along b vector. So I have to now give it a vector presentation. तो मुझे अभी इसको एक वेक्टर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सो मुझे एक वेक्टर प्रेजेंटेशन ऐसे देना पड़ेगा ताकि उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उसको एक वेक्टर प्रेजेंटेशन, उसको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा, है ना। ए cos थीटा जो है √3/2 ये एक मैग्नीट्यूड है। तो मुझे उसको एक ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन है, तो मुझे अभी उसको एक ऐसा प्रेजेंटेशन देना चाहिए ताकि उससे उसका डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन आ जाएगा। उसके साथ कुछ ऐसे करना चाहिए ताकि उसके पास एक डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा, और साइमल्टेनियसली उसका जो मैग्नीट्यूड है √3/2 वो भी नहीं चेंज हो रहा है। and simultaneously what magnitude it has, that is √3/2 should also not change, है ना। ये जो √3/2 जो मैग्नीट्यूड है ना, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। सो आई कैन से दैट वेक्टर प्रेजेंटेशन, कैन आई से दैट वेक्टर प्रेजेंटेशन can I say that vector presentation of a cos theta is equal to a cos theta is a cos theta b क्या, उसका डायरेक्शन अलोंग बी है, और मुझे, मैंने बोला था कि मुझे उस पर कुछ ऐसे ऑपरेट करना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और उसे डायरेक्शन भी मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ से ए cos थीटा बी कैप जो है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने मल्टीप्लाई किया यूनिट वेक्टर। ए cos थीटा बी कैप जो है, ए cos थीटा के साथ मैंने बी कैप यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलोंग बी वेक्टर है, तो बी कैप मल्टीप्लाई करने से इसका डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन आ गया अलोंग बी वेक्टर, प्लस क्योंकि मैंने बी वेक्टर मल्टीप्लाई किया है और बी वेक्टर बी कैप मल्टीप्लाई किया है, और बी कैप एक यूनिट वेक्टर है, और एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है ना। तो ये जो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ए cos थीटा का जो वैल्यू है वो भी नहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ए cos थीटा का जो वैल्यू है वो भी नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू √3/2 वही आ रहा है कि नहीं। हमें क्लियर, ये समझ में आ गया। मैं एक्चुअली मुझे इसका वेक्टर प्रेजेंटेशन चाहिए, किसका, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का। आई वांट वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने बी कैप मल्टीप्लाई किया, बी कैप मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि उसको तो वेक्टर प्रेजेंटेशन मिल गया विच इज अलोंग बी,
है ना, डायरेक्शन मिल गया विच इज अलॉन्ग बी, डायरेक्शन का प्रेजेंटेशन आ गया, प्लस बी कैप जो है, बी कैप इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि बी कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने से ए cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज हो रहा है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा, दैट इज √3/2। बच्चों इतना समझ में आया ना? रिप्लाई नहीं मिल रहा, बहुत कम लोगों से रिप्लाई मिल रहा है मुझे। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अच्छा, दो और Yes, तीन sir. रिप्लाई आया बस। अरे थोड़ा और एनर्जी दिखाओ ना बेटा, ताकि मेरा भी एनर्जी बना रहेगा, है कि नहीं? ओके, तो ए cos थीटा बी कैप है, अभी ए cos थीटा बी कैप हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो बेसिकली बी कैप क्या है, बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना। सो व्हाट इज बी वेक्टर, बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, तो implies b cap is equal to 2i cap minus j cap minus k cap whole divided by अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। ये आ गया b cap, a cos theta was √3/2, implies a cos theta b cap is equal to √3/2 into 2i cap minus j cap minus k cap whole divided by 6, whole divided by अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। तो implies a cos theta b cap इक्वल टू अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, 1/2 टाइम्स 2i cap माइनस, so that equal to I cap minus 1/2 j cap minus 1/2 k cap. So this is the answer. अब मुझे आंसर यहाँ पे मिल रहा है, a cos theta यूनिट वेक्टर along magnitude of, along component of a along b, sorry वेक्टर, है ना, वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ component of a along b is a cos theta b cap, that is equal to I cap minus 1/2 j cap minus 1/2 k cap. ठीक है बच्चों, है ना। अब इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ये वेक्टर मिल गया डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ, है ना, हम डिवाइड करेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, तो मैं इसका रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। मैंने तुमको क्या सिखाया, वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो तुम लोगों को 2 मिनट के अंदर वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए निकालना है। वेक्टर, है ना, कैलकुलेट वेक्टर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो मैं इसको हटा रहा हूं so that I can create some space. If you have all written this, now फटाफट तुम लोग
आंसर कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। That is the next part of the question. Vector presentation of component of B along A। ठीक है ना? हो गया क्या? चलो मैं बता देता हूँ। ए वेक्टर है ना? आई कैन से दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए डॉट बी क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना? कंपोनेंट ऑफ component of B along A, component of B vector along A vector is B cos theta. B cos theta is equal to A dot B by A. So what is B cos theta? B cos theta is A dot B by A। ठीक है ना? अरे वाह, धीरे धीरे मुझे आंसर आने लगे अभी। आई एम गेटिंग सम आंसर। चिन्मय साहू has given me answer. Very good, very good. सुमन, आदित्य, ज्योतिर्मय, सुप्रिया, चिन्मय, है ना? चलो बढ़िया है बच्चों, है ना? बढ़िया आंसर्स मिल रहे हैं मुझे अभी सबके। ठीक है, देखते हैं देखते हैं, है ना? देखते हैं अभी किसका आंसर सही है, किसका गलत है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। नहीं, ऑलमोस्ट सबका एक ही आंसर आया है, तो या तो सबका सही है या तो सबका गलत है, जो भी लोग आंसर दिए हैं। ठीक है, तो बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाई ए। तो पहले तो ए डॉट बी निकाल लेते ना। ए डॉट बी इज इक्वल टू, है ना, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, है ना, डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ये ले लिया हमने डॉट प्रोडक्ट, है ना, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अगेन, है ना, प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3। ये हमने ऑलरेडी निकाला था ए डॉट बी, है ना? तो बेसिकली ए डॉट बी बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर।
होल अंडर रूट है ना, implies मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, 1 + 4 + 9 अंडर रूट 14 है ना। तो implies b cos थीटा क्या होगा, a डॉट b बाई a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b कितना है 3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इज अंडर रूट 14, so implies b cos theta is equal to 3 by under root 14. cos ray is equal to 3 by under root 14, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आ गया b cos theta. Now what is ना वेक्टर फॉर, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग ए वेक्टर है, सो वेक्टर फॉर्म इज b cos theta a कैप, है ना। तो बेसिकली a कैप क्या होगा, a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, है ना, a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. A vector is equal to I cap plus 2j cap, 2j cap minus 3k cap by magnitude of A, which is under root 14. तो magnitude of A जो है that is under root 14, है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा implies A cap, अच्छा A cap तो आ गया, तो implies B cos theta A cap, B cos theta is equal to 3 by under root 14 equal to 3 by under root 14 into I cap plus 2j cap minus 3k cap by under root 14, ठीक है ना बच्चों, implies b cos theta a cap equal to 3 by 14 into I cap plus 2j cap minus 3k cap, ठीक है ना। So this is b cos theta a cap. ठीक है, so this is the answer, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। Clear? So let us move to now cross product, ठीक है ना बच्चों, ये समझ में आ गया सबको। आदित्य, आयुश्री, विश्वरूपा, चिन्मयी, ज्वेल, ज्योतिर्मयी, कालिदास, कल्याणी, मनमय, नीलेश, पूनम, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, पूजारानी, रोशन, रोशनी, संगमित्रा, शुभश्री, सुमन, सुप्रिया, सुप्रिया, तन्मय, विकी। सो एवरीवन इज क्लियर, सबको समझ में आया। Yes, sir. ओके, Yes, sir. so I'll go to the next page where we'll discuss about, basically now we'll discuss about क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। ये डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट खत्म, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स, क्लियर द कैनवास, यस। नाउ वी विल स्टडी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना।
ठीक है ना. सो व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज लाइक, है ना, इफ ए एंड बी, if A and B are two vectors inclined at an angle theta with each other, है ना, then A vector cross product with B vector is represented as A B sin theta n cap. A B sin theta n cap, है ना, where n cap is unit vector. तो n cap जो है that is unit vector perpendicular to the plane. So basically this is unit vector perpendicular to plane containing A and B. ठीक है ना. तो बेसिकली ए और बी वेक्टर, ठीक है ना, ए और बी अगर दो वेक्टर हैं तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी. जिस प्लेन पे ए एंड बी है उनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है उन्हीं के प्लेन को परपेंडिकुलर है. The resultant of the cross product is perpendicular to both the plane containing A and B, है ना. तो मैं तुमको ना क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बता देता हूँ बच्चों. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स जैसे कि बेसिक रिजल्ट्स बता देता हूँ. आई क्रॉस आई हो जाएगा 0, क्योंकि आई क्रॉस आई में क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 into 1 into साइन 0, है ना. लेकिन आई क्रॉस जे जो होता है और आई क्रॉस के जो होता है इज इक्वल टू माइनस जे कैप. फिर जे क्रॉस आई, है ना, इज इक्वल टू माइनस के कैप. अच्छा, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी तुमको बता देता हूँ दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना. तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आता है बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट उसका उल्टा आता है ना. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. और आई कैन से दैट बी क्रॉस ए जो है बी क्रॉस ए इज अगेन नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी. जैसे ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए है वैसे ही बी क्रॉस ए जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी. सो नेक्स्ट कम्स j cap cross I cap which is equal to minus k cap. J cap cross j cap which is again equal to 0. J cap cross k cap again equal to I cap. K cap cross I cap is equal to j cap. K cap cross k cap equal to 0. K cap cross j cap is equal to minus I cap.
जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, ठीक है ना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स है ना। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट। अच्छा, तो इसका ना निकालने का तरीका भी है एक्चुअली, मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जस्ट ये खत्म हो गया। डिड यू नोट डाउन दिस थिंग? Yes, sir. सो इफ आई टेक, है ना, एग्जाम्पल, ठीक है ना, इफ आई वांट टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से, तो बच्चों मान लो आई वांट टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पर्टिकुलर वेक्टर्स। सो बेसिकली इफ आई वांट टू फाइंड आउट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पर्टिकुलर वेक्टर्स, जैसे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू अगेन 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और मान लो बी वेक्टर है ना, इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, if I want to find out a vector cross b vector, ठीक है ना, a वेक्टर का फॉर एग्जांपल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस कैप, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट विथ i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट के टर्म्स से हम सजा के लिख सकते हैं ना, a क्रॉस b लेना है ना, तो पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, i कैप जे कैप के कैप, इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, जो ए के कोफिशिएंट्स है आई जे और के है ना, वो पहले लिख लो 2 1 -1, फिर बी के जो कोफिशिएंट्स है 1 -1 -3, इसको लिख लो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आई कैप होल इंटू 1 इंटू -3, दैट इज इक्वल टू -3 माइनस ऑफ -1 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू +1, फिर माइनस जे कैप होल इंटू 2 इंटू -3 -6, सो माइनस इंटू -1 प्लस, फिर प्लस के कैप, ठीक है ना। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब आई कैप के साथ आई कैप लेना है तो 1 और -3, फिर -1 इंटू -1, है ना, डिटर्मिनेंट जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जे कैप फिर 2 इंटू -3 -1 इंटू -1, फिर के कैप लेंगे तो फिर ना के कैप के लिए इसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -1 2 इंटू 1 इंटू 1, सो दिस, तो ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। So this is equal to -3 -1, so -4 i कैप फिर प्लस 7 जे कैप फिर -3 के कैप, ठीक है ना। तो implies a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू -4 i कैप प्लस 7 जे कैप -3 के कैप, ठीक है ना। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब कल वाले क्लास में बेटा बच्चों, आज का क्लास ओवर है यहाँ पे, कल वाले क्लास में हम वेक्टर्स के और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। we'll discuss some problem and we'll start kinematics, ठीक है ना, because this is a crash course, so we'll try to move a little bit faster, है ना, कि हर 2 क्लास में एक चैप्टर खत्म करके हम आगे बढ़े, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभिजीत सर,
Sir, the class is over now. Abhineet sir. Okay, sir. Thank you, sir.